اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ سن 70 عیسوی میں یروشلم کے بارے میں جناب مسیح کی دی ہوئی یہ نبوت پوری ہوئی۔ رومی لشکروں نے جو ٹائٹس کی قیادت میں تھے شہر یروشلم کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا۔ آج ماہرین آثار قدیمہ موجودہ یروشلم کے نیچے مسلسل کھدائی میں مصروف ہیں۔ ماضی کی تہذیبوں کے بچے کچھ آثار خاموش گواہوں کی طرح گزرے ہوئے زمانوں کے ہولناک واقعات کی شہادت دیتے ہیں۔ یہی وہ زمین ہے جہاں جناب مسیح خود چلتے تھے۔ اسی مقام سے انہوں نے یروشلم کی شاندار عمارتوں اور اس کے خانہ خدا کو دیکھا ہوگا، اور پھر فرمایا تھا، ایک پتھر بھی دوسرے پر باقی نہ رہے گا۔ اور جو کچھ انہوں نے پیش گوئی کی تھی وہ حیران کن درستگی کے ساتھ پورا ہوا۔ آخر یہ شخصیت کون ہے جناب مسیح؟ کیا وہ صرف کوئی ایسے نبی ہیں جو تباہی، موت، بربادی اور عدالت ہی کی بات کرتے ہیں، یا پھر ان کی ہستی میں اس سے کہیں زیادہ کچھ ہے؟ یہ وہی سرزمین ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی، گلیل، جو شمالی اسرائیل میں واقع ہے۔ وہ مقام ہے جہاں وہ پروان چڑھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے ان لوگوں سے خطاب کیا جو انہیں سننے آئے تھے یا اپنے بیماروں کی شفا کے طالب تھے، اور انہوں نے انہیں شفا بخشی۔ انہوں نے بھوکے لوگوں کو روٹی عطا کی اور ان کے دلوں کے لیے آب حیات فراہم کیا۔ اور جناب مسیح نے ان سے فرمایا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں سے ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ جناب مسیح نے فرمایا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا، اور وہ ان کے پیچھے ہو لیے اور ان کی باتوں کو غور سے سنتے رہے۔ ان میں سے بعض نے وہ سب کچھ تحریر کر لیا جو انہوں نے ان کے بارے میں دیکھا اور سنا۔ یوں انجیل شریف نیو ٹیسٹمنٹ کی کتابوں کی تدوین ہوئی۔ یہ کتابیں ہمیں جناب مسیح کی غریبوں کے لیے گہری محبت کے بارے بتاتی ہیں۔
ये उस जमाने के मजहबी पेशवाओं के लिए उनकी सख्त और काटदार तंबीहात बयान करती हैं और ये उनकी मौत का भी बयान करती हैं कि किस तरह वो एक कुर्बानी के बर्रे की तरह ज़िबा किए गए और सलीब पर जान दे दी। मगर ये कहानी का इख्तिताम नहीं, कहानी इससे आगे बढ़ती है। इसके बाद वो मुर्दों में से जी उठे। उनके दोस्तों ने उन्हें देखा, उन्होंने उनसे बातें की और इसी झील के किनारे उनके साथ खाना भी खाया। आखिरकार उन्होंने उनसे रुखसत ली, मगर हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने फरमाया था ज़मानों के इख्तिताम पर मैं वापस आऊंगा और सब चीज़ों को नंगा करूंगा। जनाब मसीह के इस बाद अज मर्ग जी उठने पर उनके दोस्तों ने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। वो नई जिंदगी जो जनाब मसीह दे सकते थे उनके लिए अपनी तमाम दुनियावी चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती थी। चुनाचे वो हर उस शख्स को ये पैगाम सुनाने लगे जो सुनने को तैयार था। बहुत जल्द जगह जगह छोटे छोटे जमाती हल्के वजूद में आने लगे। उन लोगों को मसीही कहा गया, जनाब मसीह के पैरोकार। ए थियोफिलस, अपनी पहली किताब में मैंने उन सब बातों का बयान किया है जो जनाब मसीह ने करना और सिखाना शुरू की उस दिन तक जब वो आसमान पर उठा लिए गए। ये वो बात है जो लूका ने लिखी, जो एक यूनानी मुआलिज था और जिसने खुद जनाब मसीह के बारे में होने वाले तमाम वाक़यात की पूरी तहकीक की थी। उसकी 2 तहरीरें यानी इंजील लूका और आमाल रसूल, ये दोनों इंजील शरीफ की 27 किताबों में से 2 हैं। इंजील शरीफ की 14 दीगर किताबें पौलुस ने बजरिया वही कलमबंद की। पौलुस वो शख्स था जो अपनी जवानी ही से यहूदी ईमान की मजबूत बुनियादों पर परवान चढ़ा था। पौलुस के नज़दीक बगैर किसी शक व शुबे के जनाब मसीह के गिर्द जो तहरीक चल रही थी वो सिर्फ एक झूठ पर मबनी फ़िरका थी जिसे मुकम्मल तौर पर मिटाना ज़रूरी था। जहाँ भी उसे मौका मिलता वो मसीह के पैरोकारों का ताक़ुब करता और उन्हें गिरफ्तार करता। यहाँ दमिश्क में भी वो उन्हीं में से एक कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था। लेकिन वो कभी वहां तक पहुंच ना सका क्योंकि दमिश्क के रास्ते में ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया। उसे एक निहायत शदीद नूर दिखाई दिया और एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी। उसने पूछा, ए खुदावन, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पौलुस पर लर्जा तारी हो गया और वो घुटनों के बल गिर पड़ा और यूं पौलुस का मसीहों का ताक़ुब करना उसके लिए हमेशा के लिए खत्म हो गया। पौलुस जो पहले जनाब मसीह के मानने वालों को सताने वाला था, बाद में मुबल्लिग़े इंजील बन गया। बाद के ज़माने में पौलुस खुद मसीह पर ईमान रखने के सबब कैदी बना लिया गया। यहाँ कैसरिया में वो कैद में रखा गया, लेकिन इससे पहले कि उसे जंजीरों में जकड़ा जाता और बंद किया जाता वो बहुत सफ़र कर चुका था। सिर्फ फ़लस्तीन ही नहीं बल्कि समंदर पार, यूनान, आसिया कोचक, बल्कि इटली और रोम तक भी पहुंचा था। और वहीं रोम में पौलुस ने जनाब मसीह के लिए शहादत पाई। पौलुस और लूका इन दोनों ने मिलकर इंजील शरीफ का निस्फ से ज्यादा हिस्सा कलमबंद किया है। इनके अलावा हजरत पतरस, यूहन्ना और याकूब जैसे रसूलों ने भी अपनी तहरीरों से हिस्सा डाला। सन 100 ईस्वी से पहले पहले नए अहदनामे की तमाम किताबें यूनानी जुबान में मुकम्मल हो चुकी थीं। ये किताबें बहरा रोम के पूरे इलाके में फैल गईं, हत्ता के यूनान तक भी पहुंच गईं। पौलुस ने अरियोपगस के बीच में खड़े होकर कहा कि ए अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान गाह भी पाई जिस पर लिखा था
कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने ही एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मायादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाएं, हर चंद कि वो हम में से किसी से दूर नहीं। क्योंकि उसी में तो हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ात इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के हुनर और इजाद से घड़े गए हों। बस खुदा जहाँ जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मारिफत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बाज ठट्ठा मारने लगे, और बाज ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया। यूनान में घूमते हुए आज भी एक ऐसी अजीम तहजीब की बेशुमार निशानियां देखी जा सकती हैं जो कभी अपने उरूज पर थी। बहुत कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन जो कुछ बाकी है वो इंसान को उस खास ज़ौक़ जमाल और फ़नून लतीफ़ा के लिए यूनानियों के गैर मामूली एहसास का वाज़े तासर देता है। मगर यूनान की वो शान और शौकत अब वक्त और शिकस्ता हाली के बाइस मांद पड़ चुकी है। अगरचे यूनानी तहजीब की अजमत मांद पड़ गई, लेकिन तबलीग करने वाले पौलुस के अल्फाज बाकी रह गए हैं। हालांकि उस जमाने में यूनानियों पर उनका ज्यादा असर न हुआ था, मगर इंजील शरीफ ने वक्त की शिकस्त और रेख्त के मुकाबले में डटकर खड़े रहने का सबूत दिया। मगर हम इस बात का यकीन कैसे करें? हमें कैसे मालूम हो कि जो अल्फाज हम इंजील शरीफ में पढ़ते हैं वही असल मुसन्निफीन ने लिखे थे? क्योंकि वो असल सफ़हात जिन पर उन्होंने लिखा था आज हमारे पास मौजूद नहीं। और जब ये हकीकत सामने हो कि मसीही ईमान, कलीसिया और पूरी मसीही तहजीब का दारोमदार नए अहदनामे पर है, तो ये जानना इंतहाई अहम हो जाता है कि आया असल मतन आज भी वैसा ही कायम है या नहीं। रोम, सन 1866। वेटिकन के अजीम कुतुब खाने में एक जर्मन आलिम कॉन्स्टेंटीन टिशेनडोर्फ खामोशी से बैठा है। वो बरसों से इंजील मुक़द्दस के ऐसे कदीम तरीन यूनानी नुस्खों की तलाश में सरगर्म है जो असल मतन के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हों।
चुनाचे वो वेटिकन की उस बावकार और अजीम शान लाइब्रेरी में बैठा है जहाँ नायाब तरीन किताबें और मखतूतात महफूज हैं। इन्हीं में कहीं कोडेक्स वेटिकानस बाइबल का एक नहायत कदीम नुस्खा छुपा हुआ होना चाहिए। टिशनडॉर्फ को इस नुस्खे को महज देखने की इजाजत हासिल करने के लिए भी तवील जिद्दोजहद और बहुत सी दरखास्तें करना पड़ी, पर बिलाखिर इजाजत दे दी गई। उसे 2 हफ्तों तक रोजाना 3 घंटे इसका मुताला करने की इजाजत मिली, मगर नोट्स लेने की इजाजत न थी। ये मखतूता यूनानी जुबान में इंजील शरीफ के कदीम तरीन मुकम्मल नुस्खों में से एक मालूम होता है, जिसकी तारीख तकरीबन 325 ईस्वी तक बताई जाती है। ये टिशनडॉर्फ की पहली दरियाफ्त नहीं थी। उसकी पूरी जिंदगी का मकसद यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा कदीम मखतूतात ढूंढे ताकि जान सके कि असल नुस्खे कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। उसने ये नतीजा निकाला कि ऐसे नुस्खे लाजमन गर्म और खुश्क इलाकों से आने चाहिए, क्योंकि नमी वाले इलाकों में चमड़े या चमड़े जैसे वर्क ज्यादा अरसे तक महफूज नहीं रह सकते, वो बहुत जल्द सड़कर ज़ाया हो जाते हैं। मगर अगला सवाल ये था कि वो कदीम कलीसियाएं और खानकाहें कहाँ थी जहाँ ऐसे मखतूतात मिल सकते थे, और इसका जवाब था मशरिक़ वुस्ता। लेकिन यहाँ एक और बात भी शामिल करना ज़रूरी है, वो मुकामात मुसलमान फतूहात के दौरान तबाह ना हुए हों, वरना कदीम नुस्खे हमेशा के लिए ज़ाया हो जाते। ताहम एक जगह तमाम रुकावटों के बावजूद बाकी रही और आज तक कायम है, और वो है सहराए सीना के वस्त में वाक़े सेंट कैथरीन की खानकाह। चुनाचे उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। उसने चंद बदवी अरब और उनके ऊँट किराए पर लिए, और यूं उसने रेगिस्तान के बीचों बीच एक निहायत दुश्वार और थका देने वाला सफर शुरू किया। यही वो मकाम है सेंट कैथरीन की खानकाह, जहाँ 300 ईस्वी से राहिब मुकीम रहे हैं। खुद ये खानकाह तकरीबन 530 ईस्वी में शहनशाह जस्टिनियान के हुक्म पर तामीर की गई। इब्तिदा में टिशनडॉर्फ को राहबों का एतमाद हासिल करने में खासा वक्त लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उनका एतमाद जीतने में कामयाब हो गया। बिलाखिर उसे खानकाह के एक नज़रअंदाज किए गए हिस्से में तलाश की इजाज़त दे दी गई, जो पुरानी किताबों और मखतूतात से भरा हुआ था, और जहाँ एक अजीम दरियाफ्त उसकी मुंतज़िर थी। पर भरपूर और मुसलसल तलाश के बावजूद टिशनडॉर्फ को इब्तिदा में कोई ख़ास कामयाबी न मिली। इसी दौरान उसकी नज़र एक राहिब पर पड़ी, जो बड़ी मुस्तादी के साथ चमड़े से बनी तहरीरी पार्चमेंट से भरी एक बड़ी टोकरी के साथ मसरूफ़ था। उसी टोकरी से टिशनडॉर्फ को अहद कदीम के यूनानी मतन पर मुश्तमिल 120 इंतहाई कदीम सफ़ात मिले। हैरत की बात थी कि वो राहिब इन सफ़ात को फालतू समझकर जलाने वाला था, जैसे उसने 1-2 दिन पहले बड़ी मुशक्कत के साथ 2 टोकरियां जलाई थीं। नौ बरस बाद वो एक बार फिर इसी खानकाह का रुख करता है, मगर इस मर्तबा भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। फिर उसके 6 बरस बाद बिलाखिर वो चीज़ उसके सामने आती है जिसकी वो तवील अरसे से तलाश में था। ये मखतूता एक राहिब के तकिए के नीचे सुर्ख कपड़े में लिपटा हुआ रखा था। टिशनडॉर्फ ने जैसे ही सफ़ात के पैकेट को देखा, वो जान गया कि यही वो कोडेक्स है जिसकी तलाश उसे यहाँ लाई थी। इसमें अहद कदीम के 199 सफ़ात और अहद जदीद का मुकम्मल मतन मौजूद था। कोडेक्स सिनिएटिकस यानी वो किताब जो सहराए सीना से दरियाफ्त हुई, अब ब्रिटिश म्यूजियम में नुमाइश के लिए मौजूद है। मगरबी जर्मनी के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू टेस्टामेंट टेक्स्ट रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर के ऑलैंड टिशनडॉर्फ की कदीम मखतूतात की तलाश को 19वीं सदी की सबसे अहम काविश करार देते हैं। डॉक्टर ऑलैंड का इस बारे में कहना है कि
बेशक आज हमारे पास मवाद कहीं ज्यादा है जिससे हम मदद ले सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम टिशनड्रॉफ के काम में कोई बेहतरी नहीं ला सके। इस वक्त हमें कम से कम 5200 यूनानी मखतूतात और टुकड़ों के बारे में इल्म है जो इंजील शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे इदारे ने अब तक 1200 ऐसे मखतूतात दरियाफ्त किए हैं जो पहले नामालूम थे, और इन सब की आइंदा तहकीक के लिए बाकायदा अक्सबंदी यानी फोटोग्राफी की गई है। हमारे इदारे में मौजूद तमाम मारूफ मखतूतात में से 95% को माइक्रो फिल्म पर महफूज कर लिया गया है, जिसकी बदौलत हम मुख्तलिफ मतून का तकाबली मुतालिया इस जगह पर कर सकते हैं। हमारा इदारा इंजील शरीफ के मखतूतात की तहकीक में मसरूफ़ है, जिसमें तहरीर के अंदाज का मुवाजना, तहरीरी रिकॉर्डिंग और तारीख का तयन शामिल है। मतन की अहमियत के मुताबिक उसकी वजाहत और जांच पड़ताल के साथ साथ वो मखतूतात जिनमें मौजूद कीमती मतन असल के सबसे ज़्यादा करीब हो, यूनानी इंजील शरीफ के उन नए और नज़र सानी शुदा एडिशंस की बुनियाद बनते हैं जिन्हें हम शाया करते हैं। मगरबी जर्मनी के शहर मिनिस्टर में वाक़ ये इदारा असल मखतूतात के साथ साथ माइक्रो फिल्म पर महफूज हाथ से लिखी गई तहरीरों का भी ज़ख़ीरा रखता है। यहाँ एक पॉलिम्सिस्ट यानी ऐसा मखतूता जिस पर पुरानी तहरीर मिटाकर नई तहरीर लिखी गई हो का बारीक बीनी से मुआयना किया जाता है, ताकि असल मतन को दोबारा पढ़ा और समझा जा सके। इम्कान है कि यह मतन दस्तयाब तमाम तहरीरी शवाहिद में से इंजील शरीफ के किसी हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो। इन मखतूतात की तस्वीर तैयार की गई हैं और इन्हें फ़ाइलों की तवील कतारों में महफूज रखा गया है। इसी तरीके से इंजील शरीफ के मुख्तलिफ मतून का बाहमी तकाबल किया जाता है, ताकि असल और मुस्तनद मतन के ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुँचा जा सके। ये काम इस कदर एहतियात से किया जाता है कि असल मतन की असर नौ तश्कील हत्ता के नहायत मामूली जुज़ियात में भी दुरुस्त होने की ज़मानत रखती है। डॉक्टर के आलांत के इदारे की जानिब से शाया करदा यूनानी इंजील शरीफ का मतन इस छोटी सी नीली किताब में महफूज है। दुनिया इंसानों से भरी हुई है और इन बेशुमार लोगों के लिए एक निहायत अहम किताब मौजूद है, बाइबल। कदीम दुनिया की कोई और तहरीर ऐसी नहीं जिसे इस दर्जे महफूज रखा गया हो कि वो ज़माने के असरात से तकरीबन बेनुकसान बची रहे। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यसू ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अबद तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था।